Hello friends, I am Anil. Today I am going to discuss a new issue, social issue, that is you see terror at home, घर पे आतंक. It is another virus that has been working surreptitiously amid COVID-19 pandemics. That is called domestic violence. First we will see why appeared in current affairs. हम लोग क्यों current affairs में इसे देखेंगे अभी. Then we will see what is the domestic violence. मेन देखेंगे कि domestic violence होता क्या है. Then we will see the condition of India is now amid COVID-19 pandemics. Then we will see cause of the domestic violence right now in COVID-19 pandemics. तो ये चार चीज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट देखेंगे क्यों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट न्यू. जब से धरती बनी तब से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है. बट द सर्जिंग नंबर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस अमिड कोविड-19 पैंडेमिक्स इज कंसर्न इन दिस वीडियो. ये क्यों बढ़ रहा, कॉज ऑफ दिस कंसर्न. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल सी व्हाई अपीयर्ड इन करंट अफेयर्स. The world struggles the contain of a scourge of COVID-19. As we know, there is another virus that has been working surreptitiously, धीरे धीरे आ रहा, छुप के आ रहा, wreaking havoc at community all over the world. The other virus is not something new. It has been present from the immemorial of our patriarchal society. यह नया नहीं है, यह हमारे patriarchal society का एक अंग है. When men have engaged in the domestic violence against women. Home is often most violent space for women, where abuse frequently goes unchecked behind the closed door. एक घर है जो हमेशा वुमेन के प्रति जो वायलेंट नेचर होता है उसको अनचेक्ड रहता है उसमें, चूंकि उसको चेक नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज बिहाइंड क्लोज डोर. While we are all focused on the tragedy brought on by COVID-19, domestic violence has crept up silently but swiftly all over the world, making it another global crisis. COVID-19 crisis में ये जो domestic violence है, making it another global crisis. Domestic violence has reached such an alarming state that even Secretary General Antonio Guterres gave a speech informing the world of horrifying global surge in domestic violence during this pandemic, bringing with it all the social and economic consequences. यह इतनी भयावह स्थिति है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक चेतावनी देनी पड़ी. सारे स्टेट, सारे मेंबर स्टेट को एक स्पीच में उन्होंने बोला, इन्फॉर्मिंग द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को समझाया कि डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ब्रिंगिंग विथ इट ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस. व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी. डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट फिजिकल वायलेंस एलोन. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स यह नहीं होता कि केवल फिजिकल वायलेंस होता है, केवल हाथ पैर का उपयोग किया जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी बिहेवियर द पर्पस ऑफ विच इज टू गेन पावर एंड कंट्रोल ओवर द स्पाउस, पार्टनर, गर्ल और बॉयफ्रेंड और इंटीमेट फैमिली मेंबर. एक बिहेवियर है जो पर्पसफुल होता है, जो अपने स्पाउस, पार्टनर, गर्ल, बॉयफ्रेंड और इंटीमेट फैमिली मेंबर को कंट्रोल करने का और पावर दिखाने का एक बिहेवियर है. एब्यूज इज ए लर्न बिहेवियर. एब्यूज अलग चीज होता है, वह इट इज नॉट कॉज फॉर एंगर, मेंटल प्रॉब्लम, ड्रग और अल्कोहल और अदर कॉमन एक्सक्यूजेज. तो समझ गए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है. देन वी विल सी द कंडीशन इन इंडिया. अभी के इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है. अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स NCW, which received complaint of the domestic violence nationwide, there was a more than twofold rise in the gender based violence. दुगुना बढ़ा जेंडर बेस्ड वायलेंस ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ नेशनल
coronavirus lockdown in India. The NCW reported a steep rise in total complaint from the women, rising from 116 in the first week of March 2028 to 157 in the final week of March when the lockdown was in full effect. देखिए दुगुना से बढ़ा ना, 162 to 257. NCW रेखा शर्मा चीफ हैं, was quoted as saying that domestic violence cases have doubled than what it was before the lockdown. लॉकडाउन से डबल हो गया. The case of domestic violence are high in उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ. तो क्यों डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस डबल हो गया इन कोविड-19 पैंडेमिक, इन लॉकडाउन पीरियड? ये थोड़ा सा कॉज हम लोग देखेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट न्यू इन इंडिया एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट इन कोविड-19 पैंडेमिक द स्टीप राइज इन द टोटल कंप्लेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस एज ए NCW रिपोर्टेड. सो देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसका एक्चुअली कॉज क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का. मोर इंटरैक्शंस, पहला कॉज है मोर इंटरैक्शन. रिसर्चर ऑन डोमेस्टिक वायलेंस shows that when the married couple are employed, domestic violence goes down as interactions between couples become less. मैरिड कपल है, वो काम करता है, कहीं एम्प्लॉयड है, तो डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि उन दोनों में इंटरेक्शन कम होती है, बातचीत कम होती है. हाउएवर अंडर द लॉकडाउन देयर आर द मोर इंटरेक्शन, लेकिन लॉकडाउन में मोर इंटरेक्शंस हो रहा है. फैमिलीज आर फोर्स्ड टू रिमेन इंडोर, फैमिली इंडोर में है, घर के अंदर है, तो इंटरेक्शन स्वाभाविक ज़्यादा होगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा ही. द मेन रीजन ऑफ द राइज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इज बिकॉज मेन आर एट होम नाउ, दे आर taking out their frustration on women and refuse to participate domestic work. ये भी एक कारण है, चूंकि वह दिन भर घर में ही रह रहा, तो फ्रस्ट्रेशन घर में ही निकालेगा, और डोमेस्टिक वर्क में भी कोई किसी भी तरह का कोई सहायता लेने या न देने पे भी कुछ बात सही हो जाती है. दैट इज अ कॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. सेकेंड कॉज है एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. इट इज अ शैडो पैंडेमिक भी इसे बोला जाता है. वो क्या है देखते हैं. रिसर्चर फर्दर पॉइंट आउट दैट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन often functions as the way of a man to release the pent up anger and frustration and also act as the way to assert his manhood. रिसर्चर पॉइंट आउट किए हैं कि जो वायलेंस, हिंसा अगेंस्ट वुमेन होता है, वो जनरली एक तरीका है मैन को अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को जो छिपा हुआ है, पेंटअप है, उसको निकालने का, रिलीज करने का तरीका है. और ये एक्ट है, ऑल्सो एक्ट एज द वे टू एसर्ट मैनहुड. एक ऐसा भी है कि मैनहुड को एसर्ट करना है कि हाँ मैं पुरुष हूँ, इस तरह का कुछ दिखाना है. द करेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द फियर, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ इन मेन. अभी जो करेंट एटमॉस्फेयर है लॉकडाउन का मौसम, उसमें एक फियर है, अनसर्टेनिटी का, इकोनॉमिक फियर, डर है, अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो क्रिएट करता है इनएडिक्वेसी, फियर टू इनएडिक्यूट इन मेन. तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है. अकॉर्डिंग टू यूएन वुमेन, एक यूएन में वुमेन पर एक संस्था बनाई गई है, एक पार्ट है यूएन वुमेन, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी. द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फोमजिलो मलाम्बो नागुक्वा, कन्फाइनमेंट अंडर द लॉकडाउन इज द, इनका नाम है डायरेक्टर का, कन्फाइनमेंट अंडर लॉकडाउन इज द फोस्टरिंग द टेंशन एंड स्ट्रेन क्रिएटेड बाय सिक्योरिटी, हेल्थ एंड मनी वरीज, and it is the increasing isolation for women with the violent partner, separating them from the people and resource that can best help them. It is a perfect storm for controlling violent behavior behind closed door. She called this violence against the shadow pandemic.
इन्होंने ही नाम दिया, यूएन वुमेन का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक वायलेंस इज द शैडो पैंडेमिक्स। एक पैंडेमिक्स है जो दिखाई नहीं देता, शैडो है, छाया की तरह है। इंक्रीजिंग आइसोलेशन ऑफ वुमन विद द वायलेंट पार्टनर। स्केयर्ड ऑफ द कंप्लेनिंग, तीसरा इसका क्या है, कंप्लेन करने का डर। द विक्टिम आज ऑल्सो स्केयर्ड फॉर द कंप्लेनिंग टू द पुलिस बिकॉज दे फियर द फिजिकल एब्यूज विल इंक्रीज। पहले होता था जब लॉकडाउन नहीं थी और यह सिचुएशन नहीं थी तो वुमेन कंप्लेन करती थी किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, लेकिन अब वो फियर करे, स्केयर्ड फॉर कंप्लेनिंग टू द पुलिस, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो फिजिकल वायलेंस है, फिजिकल एब्यूज है, वह इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि दिन रात तो घर में ही रहना है, इंटरेक्शन बराबर होना है, इसलिए वह स्केयर्ड फॉर कंप्लेनिंग। दैट इज ऑल्सो इट इज अ रीजन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस सर्जिंग राइट नाउ। द डोमेस्टिक वायलेंस वाज फाउंड टू बी इवन वर्स इन द पुअरर सेक्शन। इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वह है पुअरर सेक्शन, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन। Several psychologists have observed that men from the poorer section of society who are alcoholic have turned violent. अल्कोहलिक होते हैं जो जल्दी ही टर्न हो जाते हैं वायलेंट। वेयर दे फाउंड दैट दे couldn't get alcohol and couldn't go to work but must remain cooped up with their family in the tiny room in their the scientists under lockdown. वो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक जनरली टर्न वायलेंट इमीडिएटली, और तो पुअर सोसाइटी का हो तो एक छोटा सा घर है उसमें रहते हैं वो लोग, साइंटिस्ट अंडर लॉकडाउन, तो इंटरेक्शन बढ़ता था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिक राइज होगा। सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक वी आल्सो विटनेस्ड ए डोमेस्टिक इंक्रीज इन द रिकॉर्डेड कॉज ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन ऑल ओवर द यूरोप। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है, इंडिया के अलावा जो पूरे विश्व में या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख लिए कि स्केयर्ड ऑफ द कंप्लेनिंग क्या कारण है, हम लोग देखे कि यह एक किस तरह की टेरर एट होम है। दूसरा हम लोग देखे व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। तीसरा हम लोग देखे कि डोमेस्टिक व्हाट इज द कॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस राइजिंग इन द पैंडेमिक्स, कोविड-19 पैंडेमिक्स, और शैडो पैंडेमिक्स also called domestic violence also called the pseudo pandemics by the executive director of UN Women। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए कि स्केयर्ड कैसे टेरर होम होता है। तो ये एक सोशल इशू का क्वेश्चन बनता है इसमें से, टेरर एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, like and share. Thank you. Have a good day.